आपकी सोच a step towards child success season 1 episode 5, a platform where parents, teachers and students can express their views. On behalf of Mentor team, I welcome everyone. The views and opinions expressed in the media or comments on this show are those of speakers, authors, and participants and do not necessarily reflect or represent the views and opinions held by this show owners, channels, or broadcasters. And I would request everyone to kindly adhere to the rules so that we can have a really fruitful and intellectual discussion. So today's topic is study abroad. Is it a good option or a bad option? Now, this is a very special session because this topic was suggested by our own students, Bhuvan and Ishika here. A lot of students are looking forward to today's session, and hence we have decided to go live on Facebook as well. The idea of going abroad to study comes with many folds of question, and we know it. एंड इसीलिए हम इस बात का ग्लिम्स लास्ट सेशन में ऑलरेडी देख चुके थे बिकॉज वी वर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट सेशन इटसेल्फ. So today we are going to discuss the nitty-gritty of studying abroad. We will be discussing concerns from parents' perspective. We will also be discussing students' questions and moreover talk about how it impacts their psychological, social, financial and emotional development. And finally, we will also be discussing the topic from teachers' perspective. We also have a very special guest with us today, and I think Tushar sir will be the right person to introduce him. For the people who have joined new, this is Mr. Tushar Vyas. He is our moderator who has organized and moderated several panel discussions across the nation. Over to you, Tushar sir. Okay, so thank you, Twinkle. Everyone, welcome. Good evening. I know it is थोड़ा summer शुरू हो रहा है, so I'm sure everybody must be feeling the heat. पर हमारे ये show पे heat always होती है, so I'm very thankful to everyone, especially Sunil sir and his team. I don't see Karani madam today, but I'm sure she'll join in some time. I see a lot of new names today in this forum. So thank you very much, everyone, for joining. Before I start, I would like to introduce a very special guest. It's really my honor to introduce Mr. Ramesh Khandelwal. He's one of the director of Mentor Knowledge Management Private Limited. He is a super experienced, he has got a lot of knowledge on study abroad. So I call him study abroad expert. So he will be here to, raise his, express his opinions, what he thinks about it. And he probably would be in a position also to answer any questions that we may have. But again, I would like to repeat two statements. Today's topic is study abroad. Is it a good or a bad options? Parents, teachers, and students can freely talk about it. And second, जैसे always हम हमारे हर show पे कहते हैं, we want to create light and not heat. So please be open. But let's have a fruitful discussion. So, as always, I am a scapegoat, so I would like to start this with my point of view, right? So today's question or today's topic was whether study abroad is good or a bad option. So I really cannot comment on this because one thing is that, during my time, it was more like working abroad than study abroad. So मेरे ज़माने में working abroad, study abroad से ज़्यादा important था. Also, I think we did not have much guidance or much people to guide us. कि study abroad अगर जाना भी है आपको, तो what are the rules, what are the regulations, कौन सी एग्जाम्स देनी पड़ती है, तो काफी सारी चीजें हमारे पास तभी उपलब्ध नहीं थी. That's the reason why probably हम हमारे लिए working abroad ज्यादा important था study abroad से. Whether it's a good or a bad option, I think it depends upon the situation, upon individual. क्योंकि जब आप study abroad की बात करते हो या कुछ भी abroad की बात करते हो, the first thing comes up is the money, availability, skills, talent, competency. There are a lot of things involved for study abroad. So I think it is ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्या बुरा है क्या अच्छा है. मेरे point of view से, as I said कि मेरे वक्त इतनी
टूल्स नहीं थे, इतने असिस्टेंट्स नहीं थे हमारे, दैट्स द रीजन व्हाई हम प्रॉबली जा ना पाए। बट हाँ, वर्किंग अब्रॉड की बहुत इच्छा थी, वर्किंग अब्रॉड भी नहीं कर पाए, but yes, I've got an opportunity to see, to roam around the world, and I have experienced the culture and all that. So I think when it comes to the word study abroad, I would let, first we would keep the platform open. हम platform खुला करते हैं. Anybody has any point of view, please share. I would request Romesh sir to hear everyone, and then you help us to reach a conclusion in a collaborative approach. So your expertise will come after some time. So hang in there, sir. But I would request you to listen to everyone, because we have young students here, we have teachers here, and we also have parents. So open discussion. One more thing before we do open discussion, I would like to inform you we are live on Facebook. हम फेसबुक पे भी लाइव है. अगर किसी को कोई चांस ना मिले तो प्लीज आप अपना चैट में डालिए. हम डेफिनेटली वो उसको विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन. वी ऑलरेडी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सुयश. सुयश, हैंग इन देयर. पहले हम आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं, आज के क्वेश्चन पे एग्जैक्ट फोकस करते हैं, फिर आपके सवाल का जवाब रोमेश सर देंगे. So Suyash, hold on. But whoever has question, start putting in chat, right? So I keep the platform open. Sunil sir, would you like to start? सर आज सारे बच्चे ही बोलेंगे, आज मैं नहीं बोल पाऊंगा. क्यों सर? आप हमारे साथी हैं, तो व्हाट डू यू फील? आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब्रॉड स्टडीज एक किसी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और किसी के लिए नहीं भी. तो आई थिंक मेरे से ज्यादा ये और बच्चे बता पाएंगे. हम तो सब इंडिया में ही पले बड़े हैं. सर हमने अपनी वर्कशॉप जो उस हमारी फ्राइडे को जो क्लास हुई थी उसके बाद भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, सुनील सर और हम सब लोगों ने इसी चीज पे. तो शायद सर वो बताना भूल गए. तो सर ने उस टाइम बोला था, देखो बेसिकली क्या होता है, ये आपके खुद के अंदर, मतलब बचपन से कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि हमें जाना है, बचपन से कुछ लोगों का नहीं होता कि हाँ हमें अपने खुद ही कंट्री के लिए कुछ करना है. सो इट डिपेंड्स. आपको मतलब ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा कोर्स यहाँ पर अच्छा होता है, कौन सा कोर्स बाहर जाकर आपको यू विल बी एबल टू गेट बेटर नॉलेज इन अब्रॉड. तो बेसिकली ये नहीं बोल सकते कि ये सही अच्छा है या बुरा है, गलत है, सही है. हर किसी के अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है. सर आज इस टॉपिक पे ज्यादा व्यूज शेयर करने से ज्यादा हम एटलीस्ट मेरे पास तो क्वेश्चंस है. So इशिका, आई एम श्योर आपके पास क्वेश्चन है, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है ये क्वेश्चन को, हमारे क्वेश्चन को लेके. So what do you think? आपके हिसाब से क्या है? Is it study abroad a good or आई bad वुड option? लाइक टू से कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम अंडर ग्रेड के लिए जाए या पोस्ट ग्रेड के लिए जाए, क्योंकि अभी तो हमारा स्कूल 12th हमारे को अभी यहीं से करनी है. तो उसमें मेरे को बेटर ऑप्शन पोस्ट ग्रेड के लिए लगता है, बट मैं रोमेश सर से ज्यादा जानना चाहूंगी अंडर ग्रेड के बारे में भी. आई थिंक हम रोमेश सर के पास जाए उससे पहले आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू थिंक, अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन, what do you think about the culture? What do you think about having your life switch, living independently? So I would like to know your opinion on this matter as well. डेफिनेटली एक अच्छा एक्सपीरियंस हमारे को प्रोवाइड करता है, एंड क्योंकि हम इंडिपेंडेंट बनते हैं एंड हम डिफरेंट कल्चर के बारे में सीखते हैं. सो आई थिंक हमारे को जाना इज ऑलवेज अ वर्थ अपॉर्चुनिटी, अगर हमारा हमारे को जाना भी है, एंड हम इफ वी कैन अफोर्ड एंड ऑल द अदर फैक्टर्स टेकिंग इन कॉन. Right. And Bhuvan, can you share your views on the same? I guess it would be a better opportunity, क्योंकि देखो अब हम फॉर एग्जांपल बेटर मतलब अच्छे से पूरी वर्ल्ड को ऐसे समझना, जगह जगह अलग अलग जगह के कल्चर्स देखना, वहाँ पर क्या होता है, क्या डिफरेंट वेज हैं, क्या एजुकेशन के डिफरेंट वेज हैं, क्या मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है किसी बेटर एक्टिविटी के थ्रू समझाते हो. सो ऑलवेज एक ट्राई देना चाहिए. तो मेरे हिसाब से we don't know whether this is a reality or a perception, and I am sure Romesh sir, be ready. This thing is going to come to you,
I think we have to also explain what is the reality and what are the perceptions. जितना मैंने सुना अब तक उतना मैं ये सुन रहा हूँ कि we are more interested to understand the culture, उनका वहां पे रहन सहन देखना. But again I would like to come back and say, जैसे इशिका ने कहा था कि अंडरग्रेड हम यहाँ पे करेंगे, ग्रेड पोस्ट ग्रेड के लिए शायद वहां पे जाएंगे. So I think a proper counseling, right, from the right person really helps you to take your decisions. ठीक है, अब्रॉड जाना बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. वैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी देयर, बट आई हैव ट्रैवल्ड लॉट ऑफ प्लेसेस एंड वी आल्सो हैव मिस्टर एसके नायर हियर who has also traveled more than 100 countries, and I'm sure he'll agree with me. अब्रॉड जाना मुश्किल नहीं है, पर वहां के रहन सहन को, वहां के कल्चर को अडेप्ट करके लॉन्ग टर्म रहना इजी बात नहीं है. So ये भी एक, you know, you have to see कि what you want to do, what are your ambitions, do you want to settle there, do you want to come here. काफी सारी चीजें दिमाग में होती है. So Bhuvan will come to you, but Sunil sir wants to say something. बोलिए सुनील सर. आज ना मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आई एम नॉट वेल, तो आज मैं ज्यादा सुनूंगा. सर मिस करेंगे आपका आवाज, आपकी आवाज को Yes, मिस sir. करेंगे, बट आप प्लीज कुछ भी है तो लिख के दीजिए. आई जी वुड सर, रियली, बिल्कुल. आपके पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए. स्पेशली ये स्टूडेंट्स आपको एक पेरेंट की तरह ट्रीट करते हैं. सर आपको तो पता ही है, कुछ बोलना हो तो मैं रुकता थोड़ी ना हूँ, मैं बोलूंगा जरूर. आज लिखिएगा थोड़ा सर, कम, आज थोड़ा कम. लिखिएगा. श्योर जी श्योर. सर, यू टेक केयर सुनील थैंक सर. यू, थैंक यू सो Take care. मच. भुवन, go ahead, भुवन. सर मैं भी बस यही बोल रहा था कि अगर हम जैसे फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड की बात कर रहे हैं तो वहां पर रहकर पढ़ना इज अनदर थिंग. और थोड़ी मतलब अगर हम घूमने चाह रहे हैं तो हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं है कि हाँ हमारा मतलब सिर्फ ये है कि हाँ हम घूम रहे हैं, हमें एंजॉय करना है. बट जब आप वहां पर होते हो, ना कोई आपका जानने वाला, ना कोई जान, ना कोई पहचान वहां पर, मतलब बहुत लोनली सा फील होगा कि मतलब आप किसी को भी ऐसा, जैसे हम यहाँ पर हैं तो थोड़ा हम बोर हो रहे हैं पढ़ते पढ़ते, तो सोचो थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए बाहर चले जाओ, फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, किसी से बात कर लो. वहां पर जाकर अगर टाइम डिफरेंस हो, टाइम जोन का डिफरेंस हो, तो फिर वहां पर आप बात नहीं कर सकते किसी से. सो एक हेक्टिक वो हो जाता है. मतलब अपने माइंड को कूल करने के लिए या थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए कोई वो नहीं होगा, मतलब एक मीडियम नहीं सर होगा. ये दोनों अलग बातें हैं. एक मिनट राहुल जी, एक मिनट राहुल जी, एक मिनट. सुनील सर बोलिए. सर आई थिंक ये दोनों अलग बातें. अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको बाहर जाना है, तो आपको बाहर स्ट्रगल भी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है, आपको बहुत चीजें करनी. स्ट्रगल अपने इंडिया में भी है, आप खुद देख सकते हैं. पर यहाँ थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं. पर वहाँ का पता नहीं, हम वहाँ कहीं बाहर घूमने के लिए, फ्रेश होने के लिए निकले, कोई हमें उठा के ले गया, ये भी नहीं पता हमें. तो पढ़ाई अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमें वहाँ अपनी उस जगह को पहले अपने अंदर वो करना पड़ेगा, मतलब उस जगह के यूज टू होना पड़ेगा, तब जाके हम बाहर की पढ़ाई के भी यूज टू हो पाएंगे. सही बात है. राहुल जी बोलिए. राहुल जी. Rahul ji, you wanted to say something, Rahul? Acha, he's disconnected. Connecting to Rahul, you there? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया. नहीं, आ गए. राहुल जी आ गए. राहुल जी बोलिए. सर राहुल इंडिया हमारा स्टूडेंट है. हेलो सर. सर आई वांटेड टू नो कि सर हम क्वेश्चन आई थिंक रिफ्रेम होना चाहिए, बिकॉज हम अब्रॉड कहें तो सर अब्रॉड में तो कोई भी कंट्री हो सकता है, इवन पाकिस्तान भी अब्रॉड है. सही बात है. रोमेश जी इसका जवाब देंगे, but you can put this question in the chat also for Romesh sir to have a look at it. In the meantime, we have Ms. Dipti, Ms. Poonam Singh, Suyash, Mr. Kaushal Patel. पाकिस्तान के खुद के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो हम क्यों जाएंगे वहां अब्रॉड? सुनील जी इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये राहुल का कि when you say abroad, which country is right for you is also something very important for us to know. Yes sir, that's something. Right. So that जो also depend on general- a factor, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आगे बट जाकर. सर अगर हम एक जनरल ट्रेंड देखें तो मोस्टली लाइक डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में जाना इज अ मोर बेटर ट्रेंड. तो अगर यूरोप हो गया या फिर यूएस हो गया. बट वो Europe, आपके US. पैशन पे डिपेंड करता है ना. फॉर एग्जांपल आपको वेट बनना है, तो आप यूरोप यूएस नहीं जाएंगे, आप साउथ अफ्रीका जाएंगे जहाँ पर एनिमल्स हैं.
सुयश Yes, वो भी हम एक फैक्टर को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, बट जनरल ट्रेंड सर तो यही सुयश होता को है। तो शुरू से ही सर- बाहर जाना, शुरू से। नहीं, हम डेफिनेटली विल ट्राई टू, एक बार सर ये थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए हमारे सबके माइंड में, हम एक लाइन पे आ जाइए, फिर हर सवाल का जवाब रोमेश सर आज मोर देन 20 इयर्स से ये फील्ड में है, उन्होंने ये इंडस्ट्री को इवॉल्व होते देखा है, सो वो बहुत शान से सुन रहे हैं। आई एम श्योर उन्होंने जवाब तैयार किए हैं, बट विल कम टू रोमेश सर, बट आई वुड लाइक मिस्टर कौशल टू स्पीक। कौशल, मिस्टर कौशल पटेल। ओके मिस्टर कौशल, इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग, आप चैट पे भी लिख सकते हो, अगर आप बोल नहीं सकते, आप अगर आपकी माइक में कुछ प्रॉब्लम है तो आप चैट में भी लिख सकते हो। मिस्टर हरि नायर, आई कैन सी मिस्टर हरि नायर joining. मिस्टर नायर, okay, we have Miss Dipti also, Miss Poonam Singh, Mr. Syed. Hi Tushar, Hari here. Hello, Mr. Hari. Yes, what's your point of view, sir? Well, firstly, welcome to our show. I think you joined for the first time, so please share your point of view, sir. I joined late, I was just listening. Just want to know some understanding on these options. Okay. But what is your point of view, sir? No, I have not listened till now. I just joined only, so I am just waiting for some. So, okay. So it's okay if you've not heard anything. But our today's topic is study abroad. Is it a good or a bad option? And are you a parent? May I ask you if you're a parent or a teacher? Yeah, I'm a parent. I'm just wondering. Yeah, I want to get information from this. Yeah. As of now, I don't have any view. Okay, all right. So you're here for to take the information. Okay, Mr. Nair, we'll answer the questions in some time. Thank you. Last one or two windows maybe we can open. Miss Dipti, Miss Poonam. Then we'll hand over the baton to Mr. Romesh Khandelwal. Ishika wants to say something. Boliye Ishika. सर हम एक पोल ले सकते हैं कि किसको बेटर ऑप्शन लगता है और किसको नहीं लगता, उसे एकदम हमें वो लाइन में नहीं जाना है। इशिका, आप हमेशा अग्रेसिव क्यों होते हो? सर अग्रेसिव नहीं, मैं बस बड़े प्यार से पूछ रहे था। सर ऐसी है सर, ये एग्रेसिव है। No, I like her attitude. हमें ऐसे ही लोग चाहिए सर। She's not aggressive. I think she has a very strong opinion and glad कि वो अपना point forward रखती है। Yeah, Good she's job. like one of my colleague Rushali, who's got very strong opinion, and she just says, "Okay, this is right." But yeah, good. At least we are here together on the same platform. So, anyone else? Rahul, would you like to say something? Rahul, Mr. Kaushal Patel, please speak. Please let us know your point of view. Sir. जी Rahul. Sir, I wanted to say like sir, अभी इशिका कह रही थी कि डेवलप्ड कंट्रीज में जाना चाहिए, पर सर डेवलप्ड कंट्री में भी ऐसा तो चाइना भी है सर, वहाँ कौन बेचारा जाएगा? अब पाकिस्तान चाइना अभी भी को बीच में डेवलपिंग ला रहे हो। कंट्री में नहीं आता है। सुनील सर, ये क्या, ये मतलब what is I'm just क्या ही kidding. करें अब। नहीं सही बात है। गुड राहुल, नो ऑल द पॉइंट सर ऑफ असल व्यूज आर में इंपॉर्टेंट। राहुल काफी डिबेट्स में पार्ट लेता है, तो उसका ऐसा ही है, हम अपोज साथ में करता है बैठेंगे राहुल, कभी लैंडी देखते है हैं सर, ये क्या है। लैंडी। ठीक है, राहुल त्रिवेदी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? राहुल त्रिवेदी। ओके, ऑलराइट, सो आई थिंक अब तक जो हमने सुना है, वी आर हियर मोर टू बी, वी ऑल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये शायद परसेप्शंस हो सकते हैं, बिलीफ हो सकती है, रियलिटी हो सकती है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस प्लेटफॉर्म to our respected and special guest today, Mr. Romesh Khandelwal. Sir, over to you. हम mute पे जाएंगे. People, if you have any questions, make sure you don't interfere. Listen to him. As I said, he has seen this industry evolving. He's seen this education abroad domain evolving since so many years. So he'll be the best person to answer all your questions and hopefully to clear all your doubts. So over to you, Romesh sir. Hi, good evening, everyone. Tushar, Vishali, Twinkle, good evening, and
I'm really glad to be part of today's discussion, and it is something definitely a topic which is very close to me. And the best part is this, that we are not discussing today that why one should go abroad. We are discussing today, in fact, if I quote it in a very right way, who should go abroad and who should study in their own country. Okay. So if I say that studying abroad is a good idea or it is a bad idea, it is basically good idea for, it can be a great idea for someone to go and study abroad, and it can be a better idea for someone to stay in India and pursue their education. Okay, so we are going to discuss the scenarios, the plus and minuses and everything. So I think I should start the thing with one thought that I have in my mind. What and from where this studying abroad initiated? मुझे को बता सकता है कि ये studying abroad का idea कब से कहाँ से शुरू हुआ होगा? What would be the history of this? If someone has some idea. हाँ मैं वेट करूँगा. Okay, so we are waiting to hear. If anybody has any idea, ये study abroad कहाँ से शुरू हुआ? Studying abroad from one country to another country to study, ये कितना पुराना थॉट होगा, कितना पुराना आइडिया होगा, कहाँ से ये जनरेट हुआ होगा? कोई भी एक रॉ, कोई रफ कोई आइडिया है? एनीबॉडी? मुझे नहीं लगता है गूगल पे मिलेगा. So go on, don't try Google. Sir, I think it has to do a lot with sir. I think it has to do a lot with humans' curiosity to gain knowledge and see the world and explore the world. तो आई थिंक ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है. आप देखेंगे हमारे जो स्पाइसेस भी थे और हमारे जो चीजें थी वो बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी होती थी, तो लोग वहां जाके भी खाना पसंद करते थे, वहां घूमते भी थे, तो उस जगह के कल्चर को वहां जाते थे तो पढ़ते भी थे. तो वहां से शायद स्टडिंग पढ़ना और वहां बाहर की कंट्रीज में जाके उनकी नॉलेज लेना शायद वहीं से शुरू हुआ होगा. So maybe after 1847. सर नालंदा के टाइम से होगा. Pardon? Fine. So I think you all have got it absolutely right. I think going abroad for studying is as old idea as the human civilization it is indeed. Humans are a nomad in a sense. Okay. हम लोग जब से we have developed from Homo sapiens to being what we are today, we are the travelers. Okay, I think there are two things for which mostly our traveling has happened in the history of the human civilization. One is food for the stomach, and second is food for the thought. Right? Food for the stomach is food as such, जिसको हम समझते हैं, हम सब खाते ही हैं. And food for thought is ज्ञान, knowledge, curiosity, whatever way you may define it in your own way. So definitely this has initiated बहुत सारा ट्रैवलर, बहुत सारा मूवमेंट उसने इसको दिया. और एक उर्दू में एक फ्रेज भी है, कहा जाता है हरकत में ही बरकत है. कि आप जब we all are human beings, we are not trees. हम एक जगह खड़े होके ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो हमें मूवमेंट तो करना पड़ेगा, हरकत तो करनी पड़ेगी. और शायद स्टडिंग अब्रॉड भी वो हरकत हो सकती है जब आप होके और अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं. ओके, बट स्टडिंग अब्रॉड को अगर मैं और ब्रॉड करूं आइडिया को, तो एक्चुअली आपको माइक्रो लेवल पे समझना पड़ेगा. आप बड़ौदा रहते हैं तो आप अहमदाबाद जाके पढ़ रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ स्टडिंग अब्रॉड. आप गुजरात में पढ़ते हैं और आप कर्नाटका में जाके पढ़ रहे हैं, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया विच इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, फूड, कल्चर, एवरीथिंग. तो इंडिया में भी अगर एक गुजरात का स्टूडेंट कर्नाटका जाके पढ़ रहा है, कर्नाटका का स्टूडेंट राजस्थान आके पढ़ रहा है या दिल्ली जाके पढ़ रहा है,
So it is a kind of a studying abroad. Reason being कि they are experiencing a very different kind of culture, food, climate, everything is changing. And same things happen when you are crossing the border. जब आपको visa लेके जाना पड़ रहा है, you are going to some other country, and to get the knowledge or whatever be the purpose of your studying abroad. Now, if I come to the purpose of studying abroad, what could be the different purposes of going abroad to study? और इसी से हमको समझ में भी आएगा कि what should not be the purpose of going abroad to study, right? Someone from this group is planning in sometime in future to go abroad for studies. Anyone from the present audience? Yes, sir. Suyash. So Yes, Suyash sir. would like to go. Vikas and Suyash, you two are planning in Sir, sometime. even me. Pardon? Ishika. Ishika and Suyash, you two are have some plans in your mind to go abroad in future for studies. So if I ask you, Ishika, what would be your major reason, one or two most important reasons why you are planning to go abroad in future? A better lifestyle, opportunity to travel the world, Mhm. and a new experience in a different country. And Suyash, you, why you are planning? The more money, that's the main purpose, Mm. and meeting new people and going to a developed country, buying better technology. Mm. I think you people know a little bit about studying abroad. आप लोगों ने जो अपने दिमाग में स्टडी अब्रॉड को लेकर, मैं सिर्फ जज कर रहा हूँ आपने जो अभी आंसर दिए उसके बेसिस पे, ओके? तो आपने जो आंसर्स दिए हैं फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल और टू मीट न्यू पीपल एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर डेफिनेटली, हो सकता है आपको जरूर से मिले ये सब चीजें, बट आई थिंक दीज should not be the only or the major or the primary reason to go abroad and to study. यहीं से this is the thing where I'm saying कि studying abroad किसके लिए बना है और किसके लिए नहीं बना है वो define होना चाहिए. A meaningful study abroad ही आपके लिए हो सकता है. If it is not very meaningful, it would not be a great experience for you. तो studying abroad के लिए मुझे जो लगते हैं reasons, if I see from my side, किसी ने कहा कि हम पाकिस्तान जाके क्यों पढ़ेंगे या हम चाइना जाके क्यों पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी आप पढ़ाई करने जा सकते हैं, चाइना में भी आप पढ़ाई करने जा सकते हैं, इफ यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज पढ़नी है, अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज सीखनी है सबसे सही तरीके से, यू कैन, चाइना is the best country to go and study Chinese. Chinese is, if I say in terms of business language or the popular language, is one of the most important business language in today's global business world. Okay, आप पाकिस्तान जाके भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. फ्रेंकली मुझे अभी याद नहीं आ रहा पाकिस्तान में हम क्या सीख सकते हैं. ऑब्वियसली पाकिस्तान अभी तक अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाया कि वो किसी को कुछ सिखा पाए, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही. यूरोप आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए. यूरोप के अंदर आपको बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ने का मौका मिलता है. जर्मनी, यूरोप एक बहुत, इफ आई डिफाइन यूरोप इन माय वे, यूरोप बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडिया है. इंडिया के हर स्टेट एक भाषा के आधार पे एक दूसरे से डिवाइडेड है. पंजाब में पंजाबी चलती है, राजस्थान में राजस्थानी चलती है, बिहार उत्तर प्रदेश में हिंदी चलती है, तो मलयाली चलती है किसी स्टेट में और कन्नड़ चलती है किसी स्टेट में. यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज भाषा के आधार पे बटे हुए हैं. आपको जर्मनी जाओगे तो जर्मन मिलेगी, इंग्लैंड आओगे तो इंग्लिश मिलेगी, लिथुआनिया जाओगे तो लिथुआनीज मिलेगी, पोलैंड जाओगे तो पॉलिश मिलेगी, यूक्रेन जाओगे तो यूक्रेनियन मिलेगी. तो अगर आपको उस लैंग्वेज को सीखना है, उस कल्चर को सीखना है, तो उस कंट्री से बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती है. जर्मन, फ्रेंच, ये एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस है बिजनेस वर्ल्ड, सर, और उन्हें सीखने के लिए उससे बढ़िया कोई नहीं. यस सुनील. सर, वेयर इन यूरोप? वेयर इन यूरोप अगेन, देखिए इसमें मुझे लगता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, ओके, तो इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी एंड इटली कैन बी द बेस्ट कंट्रीज.
जर्मनी में ज्यादा ऑप्शंस हैं मास्टर्स लेवल पे टू स्टडी इन इंग्लिश। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आज भी यूरोप के अंदर बहुत रेयर ही आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलते हैं, बट मास्टर्स लेवल पे मिल जाते हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर बाय कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादातर कंट्रीज को अलाउ नहीं है ट्यूशन फीस चार्ज करना, और अगर वो चार्ज कर भी रहे हैं तो दे आर कंपैरेटिवली चार्जिंग वेरी लेस फीस। But it is definitely, I'm talking more about the technical programs or the programs which they are teaching in their own language. Okay, if you are going to Germany to study business, then it would be as expensive as you are going to study in USA. Okay, and it would be taught in English. If you want to study in their local language, it would be very cost effective, but you have to learn that language and the language skills that they need to get the admission would be very high, and it is always better to go to that country a year in advance, learn their language, skill yourself, and then apply for the main program that you want to study. Because sitting in India, it is very difficult to acquire that level of skills जिसके बेसिस पे आप उस कंट्री में जाकर उस लैंग्वेज में पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते। बट सर यूरोप का स्टडी वीजा मिलना आई थिंक बड़ा मुश्किल है, मैंने सुना है ऐसा। और कनाडा इज द इजीएस्ट टू गो फॉर अब्रॉड टू परस्यू अब्रॉड स्टडीज, इज इट ट्रू? देखो अभी मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी, ठीक है ना। एक बार एक घोड़ा और एक ऊंट फ्रेंड थे, ठीक है, जंगलों में रहते थे, आजादी से घूमते थे, एक जंगल से दूसरे जंगल जाते थे, कहीं कुछ मिलता था खाते थे, घास खाते थे, ठीक है ना। एक दिन घूमते घूमते उनको एक नया तालाब मिला, पॉन्ड, तो सोचा चलो नहा लेते हैं। ऊंट पहले उतर गया। अब ऊंट उतरा तो घोड़े ने पूछा कहाँ तक पानी है, ऊंट ने बोला घुटने तक है। घोड़ा उस पानी में उतर गया और क्या हुआ उसके साथ? डूब गया क्योंकि ऊंट ज्यादा ऊंचा था। हाँ, ऊंट का जहाँ घुटना आता है, नी आती है, वहां घोड़े की नाक आ जाती है और वो डूब जाता है। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि बहुत सारे आप लोगों के जो थॉट्स हैं या बहुत सारे जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, ठीक है ना। और किसी भी दो जनों के एक्सपीरियंसेस आर वेरी रेयरली टू मैच। यूरोप का स्टूडेंट वीजा डिफिकल्ट है, कनाडा का स्टूडेंट वीजा आसान है। ये बिल्कुल भी इस स्टेटमेंट को आप इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। हर कंट्री के अपने वीजा एक्सेप्टेंस की गाइडलाइंस होती है, ओके, वेरी ट्रू। इफ यू आर फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस तो आपके वीजा एक्सेप्टेंस से चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, अगर आप मुझे ये बोलते कि यूरोप में सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लेस easy or more difficult than Canada or any other English speaking country, तो मैं इस चीज को जरूर एक्सेप्ट कर सकता था। यूरोप आज भी बहुत कंजर्वेटिव है, वो स्टूडेंट वीजा पे आपको बुलाने के लिए तैयार है, पर शायद सेटलमेंट के लिए दे आर लिटिल लेस ओपन और लिबरल एज कंपेयर टू द कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ओके। पर जहाँ तक स्टूडेंट वीजा सक्सेस रेट की बात आती है, ऑल कंट्रीज हैव मोर और लेस द सेम काइंड ऑफ सक्सेस रेट। होता यह है कि यूएस और कनाडा में नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा जाती है इंडिया से, यूरोप की ज़्यादातर कंट्रीज में कंपैरेटिवली कम जाती है। तो एप्लीकेशंस कम इसलिए जा रही है बिकॉज दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, एंड सेकंड इसलिए भी कम जा रही है बिकॉज ज़्यादातर स्टूडेंट जब अब्रॉड जाने का प्लान करते हैं पढ़ने के लिए, तो दे वांट टू सेटल इन दोज कंट्रीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडीज। तो यूरोप क्योंकि वो सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज कम देता है, so few students are attracted to go to those countries. Definitely they provide the settlement opportunities, but they are not as transparent or as well defined as they are in the countries like Canada, Australia, New Zealand. इन सब कंट्रीज में जितनी वेल डिफाइंड है उतनी नहीं है, ओके। वेरी वेल सेड रमेश सर। प्रोग्राम्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे 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 ये assumption था, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। But what about the programs and what about the programs? वो भी अलग होते हैं कनाडा और यूरोप की, कि ऑलमोस्ट सब कंट्रीज के सेम प्रोग्राम्स होते हैं? देखिए इसमें ऐसा है कि प्रोग्राम्स, अगर हम कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की बात छोड़ दें, जैसे मैं एक बात करता हूँ, लेट्स से इंटीरियर डेकोरेशन,
या आर्किटेक्चर है। ओके, अगर वो आप किसी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं तो वो आपको जनरली ज्यादातर कंट्रीज का आर्किटेक्चर जो होता है वो उस कंट्री के कल्चर और उस कंट्री के क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर से डिफाइंड होता है। ओके, आप इंडिया में जो आर्किटेक्चर पढ़ा है, यू माइट नॉट बी एबल टू अप्लाई ऑल दोस थिंग्स इन अमेरिका और इन यूरोप और इन यूके। ओके, सेम वे अपने अमेरिका या यूके या यूरोप के रशिया का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर होता है, अगर हमने बिल्डिंग्स देखी है तो, ठीक है ना। तो वो वाला आर्किटेक्चर आप इंडिया में इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ और भी तरह के प्रोग्राम्स हो सकते हैं विच आर वेरी मच डिफाइंड इन फॉर देयर ओन सिस्टम। ओके, बट ज्यादातर कंट्रीज के जो ज्यादातर प्रोग्राम्स हैं, आइदर यू गोइंग टू स्टडी एमबीए, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनका मोर और लेस जो आउटलाइन होता है, खाका होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो सिमिलर से होता है। लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंस कहाँ होता है कि आप जब कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट एक ही कंट्री में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी थोड़ा बहुत करिकुलम में चेंजेस हो सकता है। तो इफ यू आर सेलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, देन आपके पास हमेशा 2-4 चॉइसेस होनी चाहिए टू कंपेयर, एंड ऑलवेज कंपेयर द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, देन द कोर्स स्ट्रक्चर, उनका कितना फोकस है, उनका अपना स्ट्रेंथ कितना है उसके अंदर, जो फैकल्टीज उसको पढ़ाने वाली हैं या जो डिपार्टमेंट हेड वगैरह हैं, उनका पिछला क्या रिकॉर्ड है, ठीक है ना। वो अपने आप में उसमें ये सब चीजें दे रखी होती है। मोस्ट ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज उन्होंने बहुत वेल डिफाइंड वे में अपनी फैकल्टी टीम का और अपने करिकुलम वगैरह को बहुत ढंग से स्ट्रक्चर्ड कर रखा होता है, सो स्टूडेंट कैन टेक अ कैलकुलेटिव डिसीजन। तो ये सब आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली आइडिया लग जाएगा। एक दूसरा फर्क होता है लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। जैसे इंडिया में बैचलर्स डिग्री जनरली 3 साल की होती है, टेक्निकल प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग की 4 साल की होती है। आप यूएसए या कनाडा जाएंगे तो वहां पे बैचलर्स डिग्री भी जनरली 4 साल की होती है। ओके, यूरोप में जनरली बैचलर्स डिग्री 2 तरह की होती है, मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो बीई अगर आपको मिल रहा है तो वो जनरली 4 साल का होगा, पर उनके पास एक और स्पेशल डिग्री होती है बीएससी, यानी कि बीएससी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग। इस तरह के प्रोग्राम्स आपको 3 साल के भी मिल जाते हैं, और उसके अंदर जनरली आप वही सब स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं इन जनरल, मोटा मोटा, जो आपको जनरली बीई की डिग्री में मिलनी होती है, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेटली व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर एज एन इंजीनियर, सपोज यू वांट टू कम बैक टू इंडिया और यू वांट टू गो टू कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, शायद आपको बीएससी वाली 3 साल की डिग्री डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं होगी, और आपको अगेन 1 ईयर और 2 ईयर का कोई ना कोई पाथवे प्रोग्राम करना पड़ेगा टू मेक योर डिग्री इक्विवेलेंट टू देयर अंडर ग्रेजुएट लेवल। ओके, तो अगर आपको उन्हीं कंट्री में सेटल होना है या सिर्फ नॉलेज ही लेनी है तो आप इस तरह के प्रोग्राम में जा सकते हैं। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो 4 साल के होते हैं, मोस्टली वी शुड ज्वाइन द 4 ईयर प्रोग्राम्स। और ये भी अभी जो बात चलती है कि क्यों इतनी सारी एप्लीकेशन यूएसए, यूके, कनाडा जाती है, यूरोप में कम क्यों लोग जा रहे होते हैं, तो उसका भी मेजर रीजन यही है कि यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज का जो करिकुलम है उसको एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिलेगी। ओके, अभी ज्यादातर कंट्री जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज बोलेंगे कहेंगे तो वहाँ के करिकुलम को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा नहीं मिली है। बट इनफैक्ट यूरोप ने बहुत सारे काम करे हैं कि वो इंटरनल यूरोपियन कंट्रीज में उनके प्रोग्राम्स को आपस में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अगर हमने नाम सुना हो ECTS जैसी चीजों का, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, तो आप यूरोप में पढ़ने जाएंगे आपकी हर पढ़ाई ECTS क्रेडिट्स के तौर पे ही कैलकुलेट होती है। तो आप जर्मनी में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू ट्रांसफर योरसेल्फ टू फ्रांस और टू पोलैंड और टू स्वीडन और फिनलैंड और नॉर्वे, तो आपको वो अपनी ECTS क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और जहां से आपने खत्म करा है मोर और लेस आप वहीं से आगे वहां शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का उनका इंटरनल उन्होंने सिस्टम बना रखा है कि स्टूडेंट को यूरोप में पढ़ना हो तो उसको दिक्कत ना आए। ओके, I think this was the one thing. Now if I think what should be the reasons to go abroad and planning to go abroad or study, उस पे मेरे पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक बहुत बढ़िया रीजन जो अब्रॉड जाने का होना चाहिए पढ़ने के लिए, वो होना चाहिए टू गेट
admission into better universities if you are not able to get admission in an equal level of university in India. इस चीज को समझिए आप. इंडिया में पढ़ाई बहुत अच्छी है, वी ऑल नो. मैं भी इंडिया से पढ़ा हुआ हूँ, हम में से ज्यादातर लोग इंडिया में पढ़े हुए हैं. Majority of the people in India, they have studied in India and they are doing wonders. Okay. प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो इलाइट इंस्टीट्यूट्स हैं, द इंस्टीट्यूट्स विच कैन गारंटी क्वालिटी एजुकेशन, जैसे IIT है, IIM है, एम्स है, ओके, इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कंपटीशन बहुत हाई होता है और ज्यादातर और बहुत बार एक एग्जाम के रिजल्ट पर ही आपका एडमिशन होना या नहीं होना डिसाइडेड होता है. तो अगर आपको इस तरह के इंस्टीट्यूट में पढ़ना है और आपने अपना अटेम्प्ट करा है, कैट दिया है, JEE दिया है, और आपको लगता है यू आर डिजर्विंग, यू शुड स्टडी इन सच इंस्टीट्यूट, और आपको अपने अटेम्प्ट्स के अपने बेस्ट देने के बाद भी एडमिशन नहीं मिल रहा है, सो दिस कुड बी अ गुड रीजन टू गो अब्रॉड. क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज स्पेशली UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में अच्छी चीज ये है that the admission criteria are comparatively low even for the universities which are as good as the IITs or IIMs of India. Okay, तो आपके लिए एक अच्छा alternate हो सकता है, but only if you tried your level in India and then you are not getting the admission in the right university. तो ये एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है टू अब्रॉड कि वहाँ पे कंपटीशन कम है एडमिशन के लिए, स्टिल क्वालिटी आपको सिमिलर लेवल या उससे बेटर लेवल की मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन. जनरली आपके जो एडमिशन होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में वो होते हैं आपके अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th या बैचलर्स डिग्री के मार्क्स पे, परसेंटेज पे, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स पे, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनता है, ऐसे बनता है उसके बेसिस पे, और फिर ये जो IELTS या GRE के स्कोर्स होते हैं इनके बेसिस पे, GRE, ACT, SET, पर इनमें जनरली एक मिनिमम जो इनका स्कोर का क्राइटेरिया होता है, अगर आपने फुलफिल कर लिया है तो एडमिशन के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं. इसके बाद जो आपने बेटर स्कोर बनाया तो दैट कुड हेल्प यू टू गेट सम बेटर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज. तो अगर स्कॉलरशिप को हम लोग साइड में रख दें तो एडमिशन के लिए तो उनके मिनिमम क्राइटेरिया को आपने फुलफिल कर लिया है, then you would have good opportunity or good chances of getting admission in a equally good university in abroad. Second reason जो हमारा abroad पढ़ने का होना चाहिए वो होना चाहिए, as I think Suyash has told, if I'm not missing the name right, कि हम नए लोगों से मिल पाए. अभी एक्चुअली नए लोगों से मिलने से ज्यादा शायद सुयश ही वो बात कर रहा था, if I'm not wrong, कौन बात कर रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे, हमें फैमिली नहीं मिलेगी या हमें फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे तो हम अपने आप को रिफ्रेश कैसे करेंगे. आई थिंक यही सीखने वाली चीज़ है आज के दुनिया में कि आप नए लोगों से कैसे अपनी जान पहचान बना सकें, कैसे उनसे मिक्सअप हो सके, कैसे अपने लिए जगह बना सके. और इसके लिए आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा अब्रॉड ही जाना पड़े. मैं तो बोलता हूँ कि आप कर्नाटका में हैं तो आप केरला में जाके पढ़िए, एटलीस्ट साल या 2 साल आपको जरूर पढ़ना चाहिए. अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है. हमारे यहाँ आज के दिन में छोटी फैमिलीज हैं, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है अपने बच्चों पे, दे आर टेम्पर्ड एंड उनको लाइफ स्किल्स, स्ट्रीट स्मार्ट बनने का मौका नहीं मिलता है. ठीक है ना, तो वो स्ट्रीट स्मार्ट बनने का मौका आपको तब मिलता है व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. तो मैं आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ अब्रॉड जाओगे तो ही वो मिलेगा, आपको इंडिया में भी मिल सकता है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, पर आपको और एडवांस लेवल का चाहिए तो अब्रॉड कुड बी वन रीजन. आपको जरूर अपना साल या 2 साल अब्रॉड में पढ़ने में या अपने स्टेट से बाहर पढ़ने में बिताना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आने वाले समय में वही लोग ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं जिन्हें क्रॉस कल्चर नॉलेज है. अभी आप देखो, आज से 10-15 साल पहले तक हमें नहीं दिखते थे फॉरेन पीपल वर्किंग इन इंडिया. अभी आप जाएंगे, आपको मेट्रोस के अंदर फॉरेन पीपल आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर. टाटा हो, इन्फोसिस हो, आपका कोई कॉल सेंटर है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अंदर अमेरिकन नेशनल्स, कैनेडियन नेशनल्स, यूरोपियन कंट्री नेशनल्स, दे आर वर्किंग फुल टाइम हियर. ओके, उनके लिए हमारा देश फॉरेन है. ओके,
तो उसी उनके साथ में भी हमको क्रॉस कल्चर कोऑर्डिनेशन आना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। तो ये हमको जनरली इससे मिलता है। एक और तो किसे नहीं जाना चाहिए? हाँ भुवन, प्लीज टेल मी, यू हैव रेज्ड हैंड, टेल मी। सर मेरे को बस एक बात पूछनी है कि ऐसा क्यों होता है कि ओनली हम लोग सोचते हैं कि हमें अब्रॉड जाना पढ़ने के लिए, और बहुत सारे हम देखते हैं सिर्फ जो फॉरेन से जो लोग होते हैं वही यहाँ पर सिर्फ जॉब करने आते हैं, वो पढ़ने नहीं आते। हाँ, बिल्कुल सही रीजन है। देखिए, मैंने आपको अभी बताया है, इंडिया की अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। when I'm saying all these things, I do not want to criticize India, but we have to critically understand India. Okay, इंडिया में जैसा मैंने कहा कि क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं पर लिमिटेड है। ओके, तो अभी किसी को अब्रॉड से इंडिया में पढ़ने आना है तो उनके लिए भी एडमिशन जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट से उसमें काफी डिफिकल्ट है। ओके, ज्यादातर हमारे पास हमने उस तरीके सिस्टम्स नहीं बना रखे हैं कि कैसे फॉरेन नेशनल्स हमारे यहाँ एडमिशन ले पाए। हमारे यहाँ उनके लिए कोई सीट्स ही नहीं होती है। उनके लिए प्रॉपर या तो एनआरआईज के लिए होती है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए होती है, या इंडियंस के लिए होती है। जनरली फॉरेन्स के लिए स्पेशल कोटा ही नहीं होता। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल कोटा ज्यादातर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है, और होता है तो बहुत लिमिटेड होता है। ओके, एक और चीज जो इंडिया के साथ में प्रॉब्लम है वो है how could I say, again, cross culture intolerance. Okay, मैं देखता हूँ कि अगर हमारे यहाँ पे कोई फॉरेनर सड़क पे जा रहा है, ठीक है ना, तो हर कोई उसको घूर घूर के देखता है। हम उनके बारे में बातें बनाते हैं, या हम उनसे अलग तरह से लेवल पे दोस्ती करना चाहते हैं। यू नो, आप उनको कॉन्शियस करेंगे तो दे वुड नॉट फील कंफर्टेबल हियर। ओके, वी शुड हैव अ कल्चर जहाँ पे हम उन लोगों के लिए उनके हिसाब से चीजों को सेट कर सके। आप देखिए, अभी इंडिया के स्टूडेंट जाते हैं कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पे इंडियंस के लिए स्पेशल हॉस्टल्स होते हैं, इंडियंस के हिसाब से फूड जॉइंट्स होते हैं, इंडियन के स्टाइल की कुकिंग यूटेंसिल्स मिल जाते हैं। पहले कुकर लेके जाते थे इंडिया से स्टूडेंट, आजकल उनको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, कुकर वगैरह सब मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके जैसे उन लोगों ने हमारे लिए वेलकमिंग और स्मूथ लैंडिंग सिस्टम बनाया है, अगर हम इन फॉरेनर्स के लिए बना पाएंगे इंडिया में तो डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेनर्स आते नहीं है इंडिया में। आपको अफ्रीकन कंट्रीज के काफी सारे स्टूडेंट्स इंडिया में छोटे बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ते मिलेंगे, जहाँ की फीस कम है और उनको अपने देश से फंड मिलता है अच्छी पढ़ाई करने के लिए, तो वो उनके बजट में जो कॉलेजेस आते हैं इंडिया के, वहाँ आके पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगर हम उनको ज्यादा कंफर्टेबल, उनको उनके हिसाब से थोड़ा सा लिबर्टी देंगे तो डेफिनेटली मोर एंड मोर पीपल वुड कम टू इंडिया। इंडिया तो वैसे भी शुरू से ही ज्ञान का सेंटर रहा है। ठीक है ना, लेकिन ज्ञान देने के लिए हमें अपने आप को भी थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा। ओके, डेफिनेटली आएंगे। हम जब अब्रॉड जा रहे हैं तो हम ऐसी कंट्रीज में जाना चाहते हैं जहां हम सेटल हो पाए। ओके, तो अगर कोई इंडिया भी आएगा तो उसको इंडिया में अपने लिए एक होम अवे फ्रॉम होम अवे वाली फीलिंग आनी चाहिए। अगर वो फीलिंग आएगी, उसको फ्यूचर में दिखेगा कि उसके लिए इंडिया में आफ्टर स्टडी भी अपॉर्चुनिटीज है, वो यहाँ रुक सकता है साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या परमानेंट, तो डेफिनेटली मोर एंड मोर पीपल वुड बी कमिंग टू इंडिया। हम भी सर आपकी ये जो सेटल वाली बात थी, हमें सेटल होना है, मैं इस पे एक बात बताना चाहता हूँ। एक एक्सपीरियंस, मेरी एक फ्रेंड की बेटी थी, वो न्यूजीलैंड गई थी बाहर पढ़ने, अपना स्पोर्ट्स का कोई कोर्स करने। तो मेरा मानना है कि आपको उसी कंट्री में जाना चाहिए अपना आगे परस्यू करने जहाँ आपका कोई रिलेटिव हो या आपका कोई फ्रेंड हो, तो आपके साथ एक बैक रहती है कि आपके साथ कोई है। तो इनके केस में क्या था, वो न्यूजीलैंड में अपना स्पोर्ट्स का कोई कोर्स करने गई थी। तो इन्हें एक तो रेंट वाले हाउस में रहना पड़ा था, कोई छोटा से अपार्टमेंट में, और उस अपार्टमेंट का रेंट देने के लिए इनको किसी पिज्जा शॉप में गर्ल का काम भी करना पड़ा था। तो इनका जो सैलरी थी और जो रेंट था वो दोनों सेम था, मतलब आई थिंक 100 यूरोस के कुछ आसपास था। तो इनकी सैलरी 100 यूरो के आसपास थी और इनका रेंट 100 यूरो। तो इनकी जो साल की वो थी वो एकदम जीरो हो जाती थी, मतलब जितना इनके पास आता था पूरा ही चला जाता था। तो आई थिंक ये थोड़ा ड्रॉबैक रहा था। तो अगर आपके साथ कोई रिलेटिव है तो आपको सबसे बड़ी बात है, एक घर मिल जाता है रहने के लिए, तो आपके पास और वहाँ की चीजें देखने का
और एक्सपीरियंस करने का और आगे भी बढ़ जाता है। और सर मेरा एक सवाल था मैं कि सुनील कॉमर्स, आपके सवाल को आप प्लीज जरूर से पूछिएगा, उसको होल्ड करके रखिए। पहले आपने जो फर्स्ट बात कही है, अगर वो इससे जी जी, रिलेटेड है तो पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि हम लोग फिर पहली बात को डिस्कस करना भूल जाए। नहीं नहीं, आप सर पहली वाली बात पूछिए। देखिए, ये जो आपने केस बताया ना, दिस इज अ क्रिटिकल एग्जांपल ऑफ व्हाई वन शुड नॉट गो टू स्टडी अब्रॉड, या किसके लिए स्टडी अब्रॉड नहीं बना है। ओके, आप समझिए, इसमें 2-3 पैरामीटर्स है जो आपने डिस्कस करे हैं। रिलेटिव्स वाली चीज, सपोर्ट सिस्टम वाली चीज, फाइनेंशियल्स वाली चीज। ओके, समझिए कि आज हम इंडिया में ही हैं। ओके, इंडिया में कोई पर्सन आना चाहता है, एक एनआरआई है जो यूएसए में रहता है और वो अपने बच्चे को इंडिया पढ़ने भेजना चाहता है। ठीक है, समझो आपके रिलेटिव हैं। आप इंडिया में कहाँ रहते हैं सुनील जी? सर दिल्ली, न्यू दिल्ली। दिल्ली रहते हैं। अब समझो कि उस स्टूडेंट को एडमिशन मिला है मुंबई में, या उसके ओके, हिसाब से जो सही यूनिवर्सिटी वो मुंबई में है। ओके, आप कितना सपोर्ट कर पाएंगे उसको? ज्यादा से ज्यादा कुछ सम ऑफ मनी दे पाएंगे। यानी पैसा तो देखिए, अगेन पैसा तो आप तब दे पाएंगे जब आपके पास भी फाइनेंशियल वो लिबर्टी है। ठीक है ना, गुंजाइश है। रिलेटिव की जरूरत सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है, रिलेटिव तो इसलिए भी होता है कि वो आपको सपोर्ट सिस्टम दे पाए। ठीक है ना, तो आप समझिए, हर कंट्री अपने आप में बहुत बड़ी है। ओके, आप जिस कंट्री के जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना चाहते हैं, आप वो ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा रिलेटिव दिल्ली रहता है तो मैं दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। दिल्ली इतना बड़ा है, आपके दिल्ली के किसी एक कोने में अगर आपकी बच्चे की यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, दिल्ली में कल्चर है कि जो लोग दिल्ली में ही रहते हैं, जिनके बच्चे दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी के आसपास रूम लेके रहते हैं। Am I right? यस, यू आर राइट। डिस्टेंस बहुत है। ओके, हमारे बच्चे खुद के यूनिवर्सिटीज के आसपास के रेंट के घर लेते हैं, जस्ट जबकि उनका रेंट वो अफोर्ड भी कभी कभी नहीं कर पाते, फिर भी वो ले लेते हैं। हाँ, मजबूरी है ना। सर यस हाँ सर बोल। बट मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट ऐसा तो होता है ना कि अगर वो दिल्ली में ही रह रहे हैं, ये दोनों मतलब अलग अलग कोनों पे वो रह रहे हैं, तो कम से कम ऐसा होता है ना कि सैटरडे संडे को वो चले जाएं। जैसे मेरे भैया हैं, वो गुड़गांव में वर्क करते हैं, तो अगर उन मतलब जब वो हर सैटरडे संडे आते हैं ना, एटलीस्ट ऐसा तो है। लेकिन अगर ऐसा है कि वो दिल्ली और मुंबई वाली चीज है, तो ऐसा मतलब उस दैट विल बी नॉट पॉकेट फ्रेंडली। नो, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हर सैटरडे संडे की मैं फ्लाइट पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के मैं मुंबई जा रहा हूँ। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉकेट फ्रेंडली। बट अगर इंटर स्टेट में ही रहते हैं या नेबरिंग स्टेट्स में भी रहते हैं, सो दैट इज इवन हाँ पॉकेट देखो, फ्रेंडली। ये मैंने कहा ना कि अगर आप एक स्टेट में, या एक स्टेट में बहुत बड़े हैं, एक सिटी में रहते हैं, तो आपके लिए शायद पॉसिबल है कि आप वीकेंड पे या फ्रीक्वेंटली मिल सके। पर ऐसा होना, ये इस कंडीशन के साथ में आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन नहीं कर सकते ना, पहली चीज। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडियंस का जो पेरेंट्स का ग्रूमिंग का तरीका है, उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी राय से डिफरेंस भी कुछ ओपिनियन रखते हो, तो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और मैं देखता हूँ, मैं दिन भर जो स्टूडेंट से मिलता हूँ, जब तक स्टूडेंट 12th क्लास पास करता है, वो कौन से ट्यूशन पे जाएगा, वो कब पढ़ाई करेगा, कब खाना खाएगा, मोस्ट ऑफ चीजें उसके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं। द मोमेंट स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसका ट्यूशन वो डिसाइड करेगा। ठीक है ना, या उसका टाइमिंग वो डिसाइड करेगा, या कई बार पेरेंट्स कॉलेज आने पे भी इतनी लिबर्टी नहीं देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्टूडेंट को, अपने बच्चे को बहुत ज्यादा, जो मैंने कहा पैम्परिंग है या ओवर केयर जो करते हैं, वो चीज के कारण ही स्टूडेंट आगे जाके कहीं ना कहीं हैंडीकैप हो जाता है और उसको इस तरह के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही बात है सर, हमारे लिए इंडिया होना में ये ऐसा ही चलता है। हमारे लिए होना ये चाहिए सुनील जी, जो आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट को धीरे धीरे, बच्चे को धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और उसको धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाना चाहिए, उसको यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए और देयर उसको, शुड बी मोर फ्रीडम एंड मोर हाँ, इंडिपेंडेंट नेचर टू द चाइल्ड इन इंडिया। अभी मैं आपको शुरू बताऊं, से ही वो हमारे स्टूडेंट अपने जब हमारे मॉम के आसपास रहते हैं और उनको बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब वो घर से बाहर जाने में भी उनके पेरेंट्स कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, ये वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए, थोड़ा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी आके जाके वो यही फाइनेंशियली तो कुछ बनेंगे। यही प्रॉब्लम आ रही है कि स्टूडेंट को वो लिबर्टी मिली नहीं है, तो वो डिपेंडेंसी पे जहां भी जाता है, वो अपनी डिपेंडेंसी और अपने को, अपने लिए सपोर्ट सिस्टम
कंफर्ट लेवल है, कंफर्ट सपोर्ट सिस्टम हम सबको चाहिए। आप यूएसए जाए, यूके जाए, कहीं भी जाए, सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि सपोर्ट सिस्टम हम इंडियंस में या फैमिली में क्यों ढूंढ रहे होते हैं? व्हाई वी डू नॉट हैव दोज स्किल्स कि हम सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर पाए अपने लिए। प्रॉब्लम ये है कि आज भी एयरपोर्ट पे जब बच्चे जा रहे होते हैं तो लड़के रो रहे होते हैं, लड़कियां नहीं रो रही होती। यू नो व्हाई? कैन एनीवन टेल मी? पता नहीं सर क्यों सर, लड़कियों को जेंडर इक्वालिटी ऑलरेडी आ गई है। काफी घर में रखा जाता है, इसलिए जब वो बाहर जा रही होती है वो ज्यादा खुश होती है। नहीं, आई थिंक मैं सर का जवाब देना चाहूंगी। आई थिंक लड़कियों को फिर भी खाना बनाना, दे नो हाउ टू डू थिंग्स, जबकि बॉयज इंडिया में थोड़े ज्यादा पैम्पर्ड रहते हैं। You are So quite they near to, don't know how to you do are things. absolutely quite near to my point. It is मैम। एक्चुअली क्या होता है, लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि आपको पेरेंट्स से एक ना एक दिन दूर जाना है, Oh yeah. और उसी कारण से उनको बचपन से सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाया जा रहा होता है। खाना सिखाना, बनाना, ठीक है ना, घर में जिम्मेदारियां लेना। ओके, लड़कों की प्रॉब्लम ये है, टिपिकली इन इंडिया उनको शुरू से बोला जाता है कि तुम तो हमेशा हमारे साथ ही रहने वाले हो। तो जब उसको मौका पड़ता है अलग जाने का तो वो सपोर्ट सिस्टम ढूंढता है, घबरा जाता है, ठीक है ना। फिर वो प्रिपेयर्ड भी नहीं होता है, खाना बनाना नहीं आता है, तो ये सब चीजें उसके लिए डेफिनेटली बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हाँ भुवन, प्लीज टेल मी। सर आप टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, मेरा थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक। हाँ, तो ये सब चीजें अगर हम स्टूडेंट्स को देने लगेंगे तो वो डेफिनेटली लड़का हो लड़की हो, लड़कियों को भी आजकल बहुत कंपनी मिलती है, लड़कों को मिलती है। अभी तो इंडिया में बॉयज गर्ल्स का इतना, एटलीस्ट अर्बन एरियाज में तो अभी वो नहीं होता है। लेकिन ये तो सच ही है कि हम लोगों को आज की तारीख में कुछ करना नहीं आता है, ठीक है ना, और वही हमको परेशानी कर जाता है। तो हम बच्चों को जब वो करने देने लगेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा मेच्योर बनेंगे, ज्यादा इंडिपेंडेंट बनेंगे, और फिर उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा एक जो पॉइंट था आपका कॉस्ट का, पार्ट टाइम स्टडी और ये सब का, इंडिया में पार्ट टाइम जॉब का कल्चर नहीं है। अगर मुझे मेरे ऑफिस में आज किसी भी पोस्टिंग, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी प्रोफाइल के लिए अगर मुझे एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं उस जॉब को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ पार्ट टाइम सेटअप में, कि मैं उसको पार्ट टाइम कैसे रखूंगा अपने यहाँ, ठीक है ना। आप अब्रॉड में जाएंगे, वहां पे ज्यादातर, अब्रॉड मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पे ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो आर्ली बेसिस पे उनकी वेजेस डिफाइन होती है। पीपल आर रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्ली वेजेस। ओके, तो वहां पे पार्ट टाइम जॉब का कल्चर है, वहां लोग करते हैं, वहां स्टूडेंट्स भी बहुत यंग एज से पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो वहां मिल भी जाती है। इंडिया में पार्ट टाइम जॉब मिलती भी नहीं है, होती भी नहीं। सर और मे बी इंडिया में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मतलब नो ऑफेंस कि इंडिया में मोस्टली जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कम पैसे में सबसे ज्यादा काम कैसे कराया जाए। नहीं, ये तो सबकी दुनिया में सबकी यही इच्छा होती है। लेकिन हाँ, मतलब हाँ, कुछ हद तक ये चीज सही है आपकी, कम पैसों में ज्यादा काम कैसे कराया जाए। दूसरा, इंडिया में स्टूडेंट वर्क कल्चर नहीं। ओके, रीजन है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे काम मतलब होता है, बेटा अभी तो तू पढ़ाई कर, काम तो जिंदगी भर करना है। सर कंपटीशन ही इतना है कि सर काम करने का टाइम नहीं मिलेगा। Excuse me, I need to interrupt. I have a flight to catch, so you guys please carry on. Sure, सुनील जी, थैंक यू सो मच सुनील जी। सर आप YouTube पे अपलोड कर दीजिएगा, मैं पूरा दिख लूंगा फिर से। जी सुनील जी, अगले हफ्ते मिलते हैं। जी, see you next week. थैंक यू सो मच। सुनील सर, हम आपके बिना से समझ नहीं पाएंगे। अरे आप इतने अच्छे रोमेश सर आए हुए हैं, इन्होंने समझा दिया मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Okay, Rumesh sir, just before you continue, we have 4 or 5 questions on the chat to answer, and then we want to summarize it also in the interest of time. पहले बस मेरे को एक बार ट्विंकल मैम से एक बात करनी है। मैम अभी आपने बीच में बोला था कि जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उसमें लड़कियों को मतलब खाना वाना बनाना, ऐसा मैम ऐसा नहीं है। मतलब एज इन अगर मैं अपना देखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अपना खुद का खाना नहीं बना सकता। I agree because मैं भी अकेला रहता हूँ। I can cook very इतने well. बड़े होटल्स होते हैं वहां पर मोस्टली अगर आप देखो तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ लड़कियां ही शेफ होती हैं, ठीक है। वहां पर 50-50 मान सकता हूँ मैं, कुछ और मान सकता हूँ, बस ऐसा नहीं है कि हाँ लड़के कुछ नहीं कर सकते। No, Bhuvan, you're misunderstanding. आप misunderstand कर रहे हो। Twinkle, do you want to clarify?
Yes, I do. Actually, मैं अपने personal experience से भी बोल रही हूँ because I have a younger brother as well. वो मुझसे 2 साल छोटा है and he has just finished his graduation. So जब वो college गया था तो I saw him क्योंकि मम्मा उसे कुछ करने नहीं देती थी. So he had to learn how to cook. So I was saying I've seen my cousins, I've seen few people who face these kind of problems. So that is where I was coming from. ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं आता. My brother, there are few dishes जो वो मुझसे अच्छी बना लेता है. So no comparison over there. Fine, but I let think us Romesh sir ने इस पे बहुत अच्छा point raise किया. quickly because we are running out of time. So first question is better ACT or SET? ये उतना ही पुराना क्वेश्चन है कि पहले अंडा आया मुर्गी आई. बेसिकली ACT और SET बहुत कुछ ऐसा कंफ्यूजन भी रहता है कि प्रीमियर यूनिवर्सिटीज सेट को एक्सेप्ट करती हैं यूएस में और ACT नहीं लेती हैं. ये काफी सारी लोगों को गलतफहमी है. ACT और सेट आप किसी भी एक एग्जाम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं. ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए एक्सेप्ट देम विद द इक्वल इम्पोर्टेंस. हाँ, अब आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपकी पढ़ाई का तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो. शायद ACT के अंदर जो क्वेश्चंस को आंसर करने का समय है वो शायद कम मिलता है. सेट में थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है. सेट में आपको कैल्सी नहीं यूज़ करने को मिलता है. ACT में आप कैल्सी यूज़ कर सकते हो. पर राइटिंग टास्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है सेट और ACT में. तो ये आपको उसके पूरे फॉर्मेट को समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए बोथ आर इक्वल. इट इज जस्ट लाइक ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में यूएसए में IELTS और TOEFL दे बोथ एग्जाम्स आर इक्वली एक्सेप्टेड. आप कोई भी एक दे सकते हो लैंग्वेज के लिए. वैसे ही ACT और सेट के साथ भी है. ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एडमिशन और स्कॉलरशिप के एग्जाम्स हैं. बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेड एंड हैव द इक्वल इम्पोर्टेंस. एंड सर एक और चीज थी कि कितनी आईवी लीग में यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है? सभी यूएस के अंदर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, मैक्सिमम प्रीमियर यूनिवर्सिटीज, दे आर मोर देन हैप्पी टू गिव अवे द स्कॉलरशिप्स. बहुत बहुत ज्यादा लिबरल होती हैं. सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा वो डेफिनेटली यस सर. उनको, लेकिन ज्यादातर आपको जितने लोग आईवी लीग में पढ़ते हुए मिलेंगे, इफ दे आर नॉट द किड्स ऑफ मुकेश अंबानी और अडानी, देन दे आर मोस्टली स्टडिंग ऑन स्कॉलरशिप और फ्री, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप के बेसिस पे एडमिशन मिला है. सो यूएस यूनिवर्सिटी, यूएस को मैं एक बहुत अच्छा कंट्री मानता हूँ जो स्कॉलरशिप्स के लिए काफी लिबरल होता है और आपको मिल जाती है स्कॉलरशिप. आईवी लीग में भी नहीं जाओगे, आईवी लीग से नीचे वाली प्रोफाइल में भी जाते हो तो भी आपको स्कॉलरशिप के चांसेस स्पेशली यूएस में बहुत अच्छे होते हैं. ओके, प्रोवाइडेड यू हैव स्पोर्ट्स एंड गुड एकेडमिक्स. यस सर, बट सैट में कितना स्कोर चाहिए होगा किसी आईवी लीग में? देखो ये सब केस टू केस होता है. इसको अभी हम लोग जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस लेते हैं क्योंकि स्कोर टू स्कोर जाएंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज इन यूरोप. डेफिनेटली मतलब स्टडीज की बात कर रहे हैं तो अच्छा स्कोप है इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए. अगर आप यूरोप की बात कर रहे हैं तो मैं यूके को यूरोप का हिस्सा मानूं ये डिस्कशन करते हुए, या यू वांट टू टॉक अबाउट द टिपिकल यूरोप? टिपिकल यूरोप, क्योंकि अभी ब्रेक्सिट के बाद आई गेस यूके इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. हाँ, नहीं, यूरोपियन यूनियन एक अलग बात है, पर यूके इज स्टिल द पार्ट ऑफ यूरोप. कॉन्टिनेंट वाइज इट इज द यस सर, बट एज इन लाइक जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे. मैं बता देता हूँ, फ्रांस एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है बिजनेस स्टडीज पढ़ने के लिए. ठीक है ना, फ्रांस के अंदर आपको काफी अच्छे स्पेशलाइजेशंस मिल जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं. 10 आई थिंक 12-15 हज़ार यूरो से शुरू होते हैं. इट कैन गो अप टू 18 to 19,000 यूरोज, बट दे आर वैल्यू फॉर मनी. काफी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं. अच्छी बात यह है जर्मनी में बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है. जर्मनी में जनरली आपको MBA पढ़ने के लिए मोस्टली 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है अच्छा MBA करने के लिए, और साथ में 70+ % चाहिए होती है अंडरग्रेड में. ठीक है ना, तो और काफी एक्सपेंसिव. आप कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज भी बता सकते हैं इन यूरोप फॉर लाइक बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स? अगेन अच्छी और नहीं अच्छी ये आई वुड नॉट, आज मुझे टिपिकली बोला गया है वी डू नॉट नीड टू टेक एनी नेम्स एंड अदर थिंग्स. सो ये सब चीजें आप मेरे से आफ्टर द इवेंट यू विल शेयर माय नंबर एंड अदर थिंग्स.
then we will discuss. Not profile to profile discussion. Sir, आफ्टर द इवेंट हम रोमेश सर का नंबर और ईमेल आईडी शेयर करेंगे और आप उनसे डायरेक्ट फोन कर सकते हो, डायरेक्ट बात भी कर सकते हो और हमसे भी बात कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन रोमेश सर. थैंक यू सो दूसरा मच। क्वेश्चन है, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कनाडा, तो मुझे कनाडा पे क्या बोलना ना, है? इसका जवाब ऑलरेडी मिल गया है सर. जब आप पहले टॉपिक पे बात कर रहे थे तभी आ गई थी इसका जवाब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक अबाउट यूके's recent move to extend limit on stay from 4 months to 2 years after graduation for international students. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनफैक्ट मैं सिर्फ यूके के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं ओवरऑल इस सिनेरियो के बारे में बताऊंगा और डेफिनेटली यूके के बारे में बताऊंगा. इसको बोला जाता है पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा, PSW बोल सकते हो बहुत सिंपल वे में. पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, PSWP, और इस तरह से इसको जाना जाता है. काफी सारी कंट्रीज देती हैं, कनाडा देता है, यूके देता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस भी देते हैं, इटली भी देता है. ये है क्या? ये है कि अगर आप किसी कंट्री में पढ़ने गए हैं और आपने वहाँ पे एक सर्टेन क्वालिफिकेशन या सर्टेन ड्यूरेशन की पढ़ाई करी है, तो ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज वो कंट्री आपको मौका देती है कि आप हमारे यहाँ रुककर फुल टाइम काम कर सकते हैं, अपने लिए फ्यूचर के लिए जॉब सर्च कर सकते हैं, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी मिलती है तो फ्यूचर में आप लॉन्गर पीरियड में रह के उसको कंटिन्यू कर सकते हैं. इसके पीछे आइडिया ये है कि ज़्यादातर कंट्रीज को पता है कि जब आप अपनी कंट्री से वहाँ पढ़ने आए हैं तो आपने उससे ज़्यादा खर्चा करा है जितना वही पढ़ाई करने के लिए आप अपनी कंट्री में करते. ओके, सो वी ऑल वांट टू रिकवर आवर कॉस्ट ऑफ स्टडीज, राइट? पहली चीज़. दूसरा ये भी है कि अगर आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट चाहिए और अगर कंट्री आपको पढ़ाई पूरी करते ही वापस भेज देगी आपके देश में, तो आपको अपने लिए वहाँ एम्प्लॉयमेंट तलाश करने का मौका कम मिलेगा. ओके, तो अच्छा, अभी जैसे यूके पहले 12 महीने की पढ़ाई के लिए 16 महीने का वीजा देता था, और अब वो मतलब आगे आप पढ़ाई पूरी करते हो तो 2 साल तक का आपको एक्सटेंडेड वीजा देता है. तो उसके पीछे कारण ये है कि समझिए कोई एम्प्लॉयर है यूके के अंदर, वो उसके यहाँ इस तरह की जॉब ओपनिंग आई है जिसमें कि आपकी प्रोफाइल मैच करती है और आप पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ पर काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो आपको ले सकता है, लेना भी चाहता है. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आपके पास वर्क परमिट नहीं है तो उसको आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा. वो आपको स्पॉन्सर करेगा वर्क परमिट के लिए, वो रिस्क लेगा, गवर्नमेंट के सामने आपके लिए अश्योरेंस देगा कि आई वांट टू स्पॉन्सर दिस ग्रेजुएट जिसने अभी हमारे यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करी है, या कनाडा का एम्प्लॉयर है, कनाडा की यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई पूरी करी है, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से. ठीक है ना, वर्क परमिट है नहीं, स्टे करने की परमिशन नहीं है, या तो आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए या आपको अपने देश लौट जाना पड़ेगा. उस सिचुएशन में वो एम्प्लॉयर अगर आपको रखना चाहता है तो उसको आपको वर्क परमिट के लिए स्पॉन्सर करना पड़ेगा. लेकिन वो तो आपको ज्यादा जानता ही नहीं है, बैकग्राउंड नहीं पता है उसको, आपको आप कितने अच्छे हैं, आपका डिसिप्लिन, आपका ऑनेस्टी, आपका हार्डवर्क पता नहीं है. तो कई बार एम्प्लॉयर्स रिस्क नहीं लेते हैं आपको अपने यहाँ जॉब ओपनिंग होते हुए भी आपको नहीं रिक्रूट करने का, और वो लोकल लेवल पर हायर कर लेते हैं कैंडिडेट्स को. शायद वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी पड़ रहे हो या प्रोफाइल मैच भी नहीं कर रही हो, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ स्पॉन्सरिंग यू. ठीक है, लेकिन ये जो पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा देने लगी है काफी सारी कंट्रीज, इसका आपको फायदा ये होता है कि एम्प्लॉयर के ऊपर से रिस्क निकल जाता है. दे कैन हायर यू लीगली फॉर द फुल टाइम जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब्स, यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स. और पीरियड में जो भी साल में 2 साल आपको मिला है कंट्री वाइज स्टे करने का आपको ओपन वर्क परमिट पे, उस दौरान यू एंड योर एम्प्लॉयर कैन हैव दैट अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे आप म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हो कि वो पीरियड खत्म होने पर अब वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है वर्क परमिट के लिए, तो ही इज मोर कॉन्फिडेंट, उसने आपका काम देखा है लंबे समय तक, आप भी कॉन्फिडेंट है, यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस एम्प्लॉयर, एंड एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग साथ में फाइनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट स्टडी जॉब सर्च वीजा वो आपको लीगली, प्रॉपर्ली, फॉर्मली वर्क परमिट के लिए स्पॉन्सर कर सकता है. Done, sir. Next question. What are the criteria for H1B1 visa for students? क्वेश्चन So सुयश का है, criteria for H1B1 visa for students. आपके हाथ में जॉब होना चाहिए. First of all, the employer should be designated employer. He should have the license to sponsor you. अगर एम्प्लॉयर के पास में लाइसेंस है तो दे कैन स्पॉन्सर यू फॉर द H1B वीजा. आपका वर्क परमिट वीजा के लिए आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं. और यूएसए में इनके जो क्राइटेरियाज हैं सिलेक्शन के,
कभी लॉटरी से होता है, कभी कैसे होता है, वो रूल्स प्रेसिडेंट जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे चेंज हो सकते हैं। तो जिस समय आप उस स्टेज पे होंगे उस समय क्या सिस्टम है, उस बेसिस पे काफी चीजें डिसाइड हो रही होंगी। तो एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, यूएस क्या अब आपको ग्रीन कार्ड देगा अगर आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हो? देखो यूएस में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो ग्रीन कार्ड लेकर वहाँ सेटल्ड है। कोई स्टूडेंट वीजा पे गया था, कोई वर्क परमिट पे गया था। देखो आप एक चीज समझिए, पीआर क्या होता है। परमानेंट रेसिडेंटशिप कोई कंट्री आपको दो ही रीजन पे दे सकती है। पहला तो रीजन ये है कि आप अपनी कंट्री में सताए हुए हैं, तो वो आपको ह्यूमन ग्राउंड पे देती है। दूसरा है कि आप उस कंट्री के लिए असेट बन सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो आपको डेफिनेटली अपने यहाँ पे पीआर देना चाहेंगे। मैं इस पे 2 मिनट लेना चाहूंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ जाएंगे। तो समझो कि आज मैं अपने यहाँ पे ऑफिस में एक पर्सन को एम्प्लॉय करता हूँ और उसको 10,000 रुपये महीना दे रहा हूँ सैलरी। मैं 10,000 रुपये महीना तभी दे रहा हूँ जब मैं उस पर्सन से कम 1 लाख रुपए का वैल्यू एडिशन अपने ऑफिस में देख रहा हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। सर एब्सोल्युटली राइट। तो अभी अगर आप किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, है ना, या आप वहाँ पे पीआर के लिए पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे जा रहे हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं। आप स्टूडेंट वीजा पे थे, फिर आपने जॉब सर्च वीजा पे लिया, फिर आपने वर्क परमिट लिया, अभी आप वहाँ काम कर रहे हैं। तो अगर आप लगातार पिछले 3-4 साल से वहाँ पे एक अच्छे लेवल पे सेटल्ड काम कर पा रहे हैं, ठीक है ना, समझो आपको आप यूके में है, 10,000 पाउंड आपको मिल रहा है, ठीक है ना, तो 10,000 पाउंड आपको तभी मिल रहा होगा जब आप 1 लाख पाउंड का उनकी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं, ठीक है। अब वो कंट्री ये देखेगी कि आप कितने लंबे समय तक अपनी जॉब होल्ड कर पाए हैं। तो पिछले 3-4 साल से आप लगातार एम्प्लॉयड हैं उस कंट्री के अंदर, तो इससे दो चीजें प्रूव हो जाती है कि आप उस कंट्री में वैल्यू एडिशन ला रहे हैं और फ्यूचर में आप अचानक से बहुत जल्दी अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाएंगे, उनके रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे। ओके, तो इस केस में आपके पीआर के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूएस में ग्रीन कार्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूएस में ग्रीन कार्ड आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत हद तक लॉटरी सिस्टम होता है, 10-10, 12-12 साल लगते हैं ग्रीन कार्ड की फाइल खुलने में, पर वो वहां पर दे डोंट हैव दैट वेरी डिफाइंड सिस्टम ऑफ गिविंग द पीआर। लेकिन मोर और लेस सिस्टम यही है, अगर आप वर्क परमिट के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर उनको आप में अपने लिए फ्यूचर में एक अच्छा सेट दिख रहा होगा तो वो जरूर देंगे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के पीआर सिस्टम काफी, और यूके के भी रिसेंटली, इन 4 कंट्रीज को मैं कह सकता हूँ काफी हद तक उन्होंने पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू अपनी चीजों को वेल डिफाइंड कर लिया है। और आपको पता होता है कि आपको कितने पॉइंट्स चाहिए अपनी पीआर के लिए, आप कितने पॉइंट्स ला पा रहे हैं। आपके पूरे के पूरे पॉइंट्स हो रहे हैं, जितने उनको चाहिए उतने भी हो रहे हैं, तो भी गारंटी नहीं है कि आपको पीआर मिलेगा, क्योंकि पीआर के पॉइंट्स होने से आप एलिजिबल हो गए हैं अप्लाई करने के लिए पीआर की फाइल। मिलेगा आपको वो इस कंडीशन पे कि आप उनके लिए फ्यूचर में उनको कितना लग रहा है कि उनके यहाँ की जिस तरह की स्किल्स शॉर्ट चल रही है, जिस तरह की इंडस्ट्रीज में जॉब जनरेट हो रहा है, क्या आप उससे कहीं ना कहीं आसपास रिलेटेड हैं, क्या आप फ्यूचर में लंबे समय तक अपने आप को जॉब में रख पाएंगे, ये सब चीजें अगर उनको श्योर लगेगी तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग द पीआर आर वेरी सर एक बाय इन्वेस्टमेंट भी तो होता है, दैट $500,000। जस्ट सॉरी इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम प्लीज, अगर कुछ है सवाल तो आप पूछ सकते हो बाद में। मैं ये सुमित सर का आई हैव पुट ऑलरेडी द नंबर एंड ईमेल आईडी, बट प्लीज पहले ईमेल से बात कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, ईमेल कीजिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी बिजी। आपके जो भी सवाल है, जो भी जवाब है, हमारे कंसल्टेंट्स है, हमारे काउंसलर्स है, आपको फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आज थोड़ा इंटरेस्ट ऑफ टाइम में हमें थोड़ा इंटरफियर करना पड़ेगा, सॉरी गाइस, but Sumesh sir, we can summarize the entire I would like to give you 1 minute, 2 minutes to summarize this entire platform, entire forum today on this subject. Sumesh sir, sorry. Yeah, I think we can summarize the thing is this way, that when you're planning for studying abroad, try to make it a meaningful study abroad. Meaningful means ये है कि आपको पता होना चाहिए why you are going, आपको पता होगा why you are going, उससे decide होगा where you should go, what you are today, how, where you want to see yourself, what are your reasons to go abroad. At our place हम लोग साल में कम से कम 10, 12, 15, 20 ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनके पैसा है, सब कुछ है, मनी है, खुद है, still we tell them don't go abroad, it is not paid for you.
और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं, काफी सारे के पास बहुत सही उनका दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, नहीं होते हैं, तो दे राइट आस्क द राइट क्वेश्चंस, तो उसको पता चल जाता है कि दे आर द राइट कैंडिडेट, उनको जरूर जाना चाहिए, एंड देन वी हेल्प देम इन ऑल द वेज कि उनके लिए जो उनका ये इंडेवर है वो स्मूथ रहे, वो जा पाए प्रॉपरली, अपना प्लान है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए। तो मुझे लगता है कि स्टडिंग अब्रॉड कैन बी अ ग्रेट डिसीजन if you have the proper reasons to go abroad, if you have the proper planning नहीं होगी आपका, जल्दबाजी में करना चाहिए, थोड़ा समय लीजिए, एडवांस में प्लानिंग करिए। स्टडी अब्रॉड के लिए कम से कम साल 2 साल पहले से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट द बेस्ट ऑफ योर स्टडी अब्रॉड एक्सपीरियंस। ये फाउंडेशन है, बिल्डिंग उतनी ऊंची बनेगी जितना उसकी फाउंडेशन नीचे डेप्थ है। तो आपको अपना जाने से पहले यहाँ पर रुककर भी अच्छा खासा समय देना चाहिए, स्पेन देना चाहिए। हमको कौन से एग्जाम्स देने हैं, उनमें कितना स्कोर लाना है, कई बार एक बार में नहीं आता है तो हम दूसरी बार देते हैं, तो थोड़ा एडवांस में स्कोर एग्जाम्स दीजिए, ताकि अगर कोई रिस्क रहे कि मिनिमम स्कोर नहीं आ पा रहा है या बेटर स्कोर नहीं आ पा रहा है तब दे पाए, ठीक है ना। स्कॉलरशिप्स के लिए जनरली थोड़ा एडवांस में अप्लाई करने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। डेडलाइंस के आसपास अप्लाई करने से हम लोग काफ़ी गलतियां हो जाती है, तो एडवांस में अप्लाई करेंगे तो उसका बेटर रहेगा आपको स्कॉलरशिप्स के लिए। और कोई करेक्शन, कोई एरर तो होती है, मैनुअल एरर्स हो सकती हैं, हम लोग अपने लेवल पर बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करके 10 बार चेक करके करते हैं, फिर भी 100 में से एक केस में हमसे भी एरर हो सकती है। सो इट इज ऑलवेज गुड टू डू द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वेल इन एडवांस, ताकि हमको हर चीज को सही करने का या बेटर करने का हमेशा समय मिले। So to reiterate what Ramesh sir said, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, why, where and what, and a proper planning with probably a proper consultation and counseling. You'll be able to make the right decision. So हमारा ये मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि meaningful study abroad बहुत जरूरी है। I've already sent you the number and email ID of Ramesh sir. Feel free to connect to us. कुछ भी अगर questions है तो we'll take it up. But again, thank you so much, Ramesh sir. We so appreciate. I'm sure आज बच्चों को बहुत ही educated forum हुई हमारी। आज मैंने कम बोला, but normally भुवन को मेरा आवाज बहुत पसंद है, so sorry भुवन, आज मैंने कम बोला, but just to make the things lighter, thank you very much everyone for joining. पसंद है आपकी आवाज। Thank you. So मैं अगले वीक का I would like to disclose, ये बार अगले हफ्ते का टॉपिक हम डिसाइड कर रहे हैं। So I'll tell you, for next week the topic is peer pressure always bad? I would like to repeat myself, is a peer pressure always bad? ये अगले हफ्ते का टॉपिक है, और इसमें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को लेके आना, अपने दोस्तों को लेके आना, ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है। और so everyone please share this link, get more people, get students, get ऐसे ही हम educated टॉपिक्स लाते रहेंगे। अगर और कोई टॉपिक्स हो तो हमें प्लीज लेट अस नो, क्योंकि 1-2 हफ्ते के पहले प्लानिंग करना पड़ता है। अगर हमें रोमेश सर जैसे कोई एक्सपर्ट चाहिए टॉपिक के, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए, तो हमें एटलीस्ट 2 वीक्स चाहिए। तो अगले हफ्ते के लिए फिलहाल विल गो विद दिस टॉपिक, इज पीयर प्रेशर रियली बैड? हम आपको ईमेल भेजेंगे, एसएमएस भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फ्रॉम रोमेश सर। आई विल गिव ट्विंकल टू वाइंड अप नाउ। Thanks. Over to Twinkle. Twinkle, we can see the screen. Do you want to talk? I'm not. Yeah. I hope everyone can hear me now. Okay. As we said कि हम starting में ही हम अपना statement of the day भी दिखाने वाले हैं. So this is our statement of the day. So yeah, so we are glad to see that people are speaking out their mind and they are presenting their views, their perspectives, especially students. I'm really happy to see that especially students जिस तरीके से वो अपना point of view रखते हैं and they're so involved. The beauty of this entire show is that they're so involved in the entire discussion.
no matter what topic we bring in, they have their opinions, and I'm really proud to see few of the students जो इतनी अच्छी तरीके से अपना बात present करते हैं. So जो हमारा previous webinar था, can parents be friends with their children? So इसका statement of the day we have selected is, it was given by Mr. Said, and the statement of the webinar was, it depends on the situation, which every parent needs to understand that when to be a friend to their children and when to be a parent to them. What it takes to be a friend is your child's faith in you. I think this was so beautiful when this was presented, and I think ये statement पढ़ने के बाद I'm taken aback थोड़ा. मैं last previous webinar की glimpse आ रहा है, which was really good, and I'm pretty sure कि हमारा जो next session होने वाला है, it's going to be again very involved and very काफी अच्छी discussion, healthy discussion होगी. And I'm really looking forward कि इस बार का जो हमारा statement of the day होगा वो किसी students से है when we talk about peer pressure. So जितनी भी आपके पास thoughts हैं, I think थोड़ा competition हो जाए. I think students, if you can spill everything out, this is your platform. So thank you so much for joining in. We'll meet next time, same day. Good night, everyone.